Good morning, students. Today we are going to see the next part of roofing, that is the steel trusses. Okay, until now we had seen the trusses. The material used was the timber, wooden material. Okay, now the next part is of steel trusses. Steel roof truss. When the span exceeds 10 meter, okay, the timber trusses becomes heavy and uneconomical. Steel trusses are more economical for larger spans. यानी आपका 20 मीटर का स्पैन है, 30 मीटर का स्पैन है, then also the steel trusses can be effectively used nowadays for single smaller span also and for larger span also. स्पैन कम रहे या ज़्यादा रहे, ज़्यादातर प्रेफरेबल जो है दैट आर द स्टील ट्रसेस. हाँ, ज़्यादातर मार्केट में जो प्रीफर होता है दैट आर द स्टील ट्रसेस ड्यू टू वेरियस एडवांटेजेस ओवर द टिम्बर ट्रसेस, बट वन शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल. द एवरी ऑप्शन you must know. However, they are more economical, easy to construct or fabricate, fireproof, more rigid, permanent. Okay, steel trusses are fabricated from rolled steel structural members. Okay, अभी आप इतना ध्यान में रखो कि स्टील ट्रसेस किससे बनते, तो स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर से बनते. स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स, सेक्शंस, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस. तो अब सेक्शन कौन कौन से? एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, उसके बाद देखो चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन एंड प्लेट्स. जनरली एंगल्स यूज होते हैं. आप लोगों ने एंगल देखा रहेगा, जो कंपाउंड वॉल में हम कंपाउंड वॉल बनाते एंगल की, तभी हम ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते, एंगल्स लगाया करके. दैट वन इज एंगल. दिस एंगल इज यूज्ड इन ट्रसेस. दिस एंगल इज यूज्ड इन ट्रसेस. Most of the roof trusses are fabricated from angle sections. Okay, because they can resist effectively both tension as well as compression. Resist effectively tensile force as well as compressive force. यानी angle sections resist compressive force as well as tensile force also. And their jointing is easy. Steel trusses may be grouped in the following categories: ओपन ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस, बोस्ट्रिंग, आर्च रिब ट्रसेस. तो इन कैटेगरीज में स्टील ट्रसेस आर ग्रुप्ड. तो इतना ध्यान में रखो कि फॉर स्मॉल स्पैन एज वेल एज लार्जर स्पैन nowadays preferred are the steel roof trusses. There are different types of steel roof trusses also. Okay, so this one is the truss. Okay, now this one is the first truss, this is second, this one is third, fourth, fifth. So center to center distance between trusses is constant. Center to center distance between trusses are generally constant. Okay, now number of trusses. This one is first column, this is second column, supported on columns, third column, fourth column, fifth column. So center to center distance, इसके पहले जब हमने डिस्कस किया था वुडन ट्रसेस में, we kept it maximum to a 3 meter. Now in steel trusses, the center to center distance between the first column and the second column, second column or second and third column can be kept as per the design requirements. Obviously there are certain criterias. Okay, so now these trusses, I already told, this one is first truss, second truss, third truss, fourth truss. Number of trusses, यानी दिस वन इज द स्पैन. अब स्पैन कौन सा हो गया? इसके पहले भी हमने स्पैन के बारे में डिस्कस किया हुआ है. हाँ, तो स्पैन, ये कॉलम और ये कॉलम, ये दो कॉलम, पहले वाले दो या बीच में के दो, ऐसा कुछ नहीं, पहले वाले दो. तो इसके बीच में का जो डिस्टेंस रहता है, वो कॉल्ड इट एज a span. Okay, दो कॉलम में के बीच में का डिस्टेंस वे रेफर्ड विथ अ वर्ड स्पैन. नाउ दिस वन इज अ स्पैन ऑफ द ट्रस, जो हम बोल रहे थे अभी
कि 5 मीटर रह सकता, 10 मीटर रह सकता, ठीक है। 10 मीटर के ऊपर रहा तो भी 20 मीटर 30 मीटर तक के स्ट्रेसेस, मोर देन दैट ऑल्सो द स्ट्रेसेस आर प्रिफर्ड, ओके। स्ट्रेसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। नाउ ये पहली ट्रस्ट होगी, दूसरी ट्रस्ट होगी, दूसरी ट्रस्ट होगी। नाउ these are the nodal points. This one is a node point, this one is node point, this one is node point. Similar node points you will find same with the second truss also. This is a second truss, this one is third truss. Similar nodal points, यहाँ पे जो नोडल है, यहाँ पे जो नोड पॉइंट है, यहाँ पे जो रीच के पास नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है। Similar points will be found for the first truss. This one is a first truss. Same points will be find for the second truss. सेम विल बी फॉर द थर्ड ट्रस। तो क्या होता है, ये पॉइंट से लेके इसके पीछे की जो है सेकंड ट्रस और सेकंड के पीछे की जो थर्ड ट्रस है, दे आर कनेक्टेड बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल मेंबर। वी कॉल्ड इट एज अ पर्लिन, वी कॉल्ड इट एज अ पर्लिन। इसके पहले हमने ये वर्ड वुडन ट्रस में स्टडी किया है, ओके। सो दिस वन इज अ पर्लिन। नोड टू नोड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जा रहा, तो वी कॉल्ड इट एज अ पर्लिन। सो दिस वन इज अ ट्रस, यानी ये हो गया स्पैन। और जितना आपका लेंथ रहेगा उतने नंबर ऑफ ट्रसेस हम क्या करते, सेंटर टू सेंटर डालते। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली ट्रस, दूसरी ट्रस, तीसरी ट्रस किसके ऊपर है, ये कॉलम के ऊपर रेस्ट है, ये कॉलम के ऊपर रेस्ट है, ये कॉलम की। तो ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इसके बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दूसरे और तीसरे का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर जनरली केप्ट इक्वल, आर जनरली केप्ट इक्वल, ओके। ये जो आपको मेंबर दिख रहा है इंक्लाइन मेंबर, दिस आर द ब्रेसिंग्स, दिस आर द ब्रेसिंग्स। तो क्या होता है, होल लेंथ इज कवर्ड बाय अ नंबर ऑफ ट्रसेस, होल लेंथ इज कवर्ड बाय अ नंबर ऑफ ट्रसेस विच आर स्पेस्ड सेंटर टू सेंटर, विच आर स्पेस्ड सेंटर टू सेंटर, okay. Now see here also there first truss, second truss, third truss, first, second, third, these are placed center to center, okay. Now the trusses, types of truss, so this one is a Pratt truss, this one is your tie member, rafter, this is rafter, this one is tie member, okay. And these are the vertical members and inclined members, these are the inclined members, so we call these as the struts. The compressive member अगर रहेगा तो we call it as a strut, okay. Now जैसा होवे है उसका अपोजिट जो दिख रहा कॉन्फ़िगरेशन, दैट स्प्रैट है, उसका अपोजिट जो दिख रहा दैट वन इज अ होवे, दैट वन इज अ होवे ट्रस। उसके बाद फिंग ट्रस, फैन ट्रस, फैंग ट्रस एंड मैंसार्ड ट्रस। तो हर एक ट्रस की एक कुछ ना कुछ ज्योमेट्री है, कौन सा भी मेंबर कहाँ पे भी कनेक्ट किया, दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द केस। तो हर एक ट्रस की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री है, वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेंबर्स कनेक्ट किए हुए, अकॉर्डिंगली मेंबर्स कनेक्ट किए हुए, ओके। सो दीज आर द टाइप ऑफ ट्रसेस एंड ईच ट्रस इज यूज फॉर डिफरेंट स्पैन्स, ईच ट्रस इज यूज फॉर डिफरेंट स्पैन। तो प्रैट ट्रस के लिए बोलो, देखो कितना बोला है स्पैन, होवे ट्रस के लिए 6 से 10 बोला है, 6 to 30 मीटर प्रैट, यानी 6 से 30 मीटर, 30 मीटर इज 100 फीट अबाउ, ओके। यू कैन यूज अ प्रैट ट्रस, यू कैन यूज अ प्रैट ट्रस, ओके। सो प्रैट ट्रस की ज्योमेट्री देख लो कैसे। तो इन प्रैट ट्रसेस द वेब मेंबर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट under gravity load the longer diagonal members are under tension and shorter vertical members experience compression. This allows for efficient design since the short members are under compression. So these are your struts, okay. Now however the wind uplift may cause reversal of stresses in these members and nullify this benefit. Wind reversal बोला है, तो विंड रिवर्सल, विंड आने के बाद जो ग्रेविटी लोडिंग के लिए हमने कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन किया था, तो विंड आने के बाद रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, देयर में बी अ
यानी जो कॉम्प्रेशन के लिए डिज़ाइन किया रहेगा दैट मे सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, दैट वी कॉल्ड इट एज अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, दैट वी कॉल्ड इट एज अ रिवर्सल ऑफ stress. So Pratt truss is used for 6 meter to 30 meter. Expected is you should know the geometry. Okay, now Hovet truss, the converse of the Pratt is the Hovet truss. As discussed, this is commonly used in light roofing so that the longer diagonals experience tension under reversal of stresses due to wind load. Okay, now next one is the structural framing for an industrial building. Structural framing for an इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. तो यहाँ पे अभी अभी मैंने जो डिस्कस किया दिस वन बेंट बोला है. ओके, यहाँ से आउटर लेके बेंट बोला है. ओके, दिस वन इज़ द स्पैन आल्सो, दिस इज़ द स्पैन आल्सो. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहली ट्रस होगी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सेकंड ट्रस, ये थर्ड ट्रस, ये फोर्थ ट्रस. यहाँ पे लिखा है ट्रस सेकंड, this is third, this is fourth truss, this one is the fourth truss and this one is the fifth truss. 6 and 7. और ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो आपको फ्रंट व्यू में ट्रस की ज्योमेट्री दिखेगी. नाउ दीज ट्रसेस आर कनेक्टेड बाय यूजिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट. दिस वन इज टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. ओके, दिस इज topmost. हर एक का topmost point is connected by using a horizontal member. We called it as a purlin. Okay. These are the wind bracings जो मैंने अभी अभी आपको बताया. These are the wind bracings. C का मीनिंग हो गया कॉलम, C का मीनिंग हो गया कॉलम. CB and CG. This is CB, this is CG. Column in breast bay in gable end. ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेसिंग्स किया हुआ है. बाकी बीच में देर आर नो ब्रेसिंग्स आर प्रोवाइडेड. सिर्फ आउटर जो बेस थे वहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइड किए हुए. ओके, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. दिस वन इज अ रिच, दिस वन इज़ अ रिच. टॉप मोस्ट पॉइंट जो रहता है हम उसको क्या बोलते, रिच बोलते. और रिच पे देखो ये जो 6 नंबर की ट्रस है और ये 7 नंबर की ट्रस है. तो यहाँ पे जो कनेक्शन किया हुआ है दैट इज़ बाय यूजिंग द रूफ ब्रेसिंग्स, दैट इज़ बाय यूजिंग अ रूफ ब्रेसिंग्स. यहाँ पे भी देखो आप इंक्लाइन मेंबर्स दिख रहे होंगे आपको ये. ओके, सो दीज आर द रूफ ब्रेसिंग्स. वो कहाँ पे किया हुआ है, वो स्टार्ट में और एंड का जो पैनल बना हुआ है वहाँ पे एट द स्टार्टिंग और एट द एंड पैनल वहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइडेड किए हुए एट द रूफ लेवल ऑल्सो, एंड हियर ऑल्सो एट द स्टार्ट ऑफ द बे. ओके, दिस इज़ द ब्रेस्ड बे. यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द ब्रेस्ड बे. या ये ट्रस 6 नंबर की ट्रस ये कॉलम के ऊपर है, 5 नंबर की ट्रस ये कॉलम के ऊपर है. दो के बीच में का डिस्टेंस वी कॉल्ड इट एज अ बे. ओके, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. तो यहाँ पे क्या आती है, ट्रस आती है. सो दिस वन अगेन जो अभी अभी हमने पूरा डिस्कस किया उसका रिलेटेड है. दिस वन इज द रिच, this one is ridge. Okay, AC ridge. Now these are the members. This one is a fin truss, this one is a fin truss. आप अगर एंगल सेक्शन को, this one is a angle section, this one is angle section. एंगल सेक्शन को अगर आप फ्रंट में देखोगे दिस वन इज द व्यू, दिस इज द व्यू. ओके, इसलिए वो आपको दिखते समय ऐसे डॉटेड दिख रहे हैं, वो सेंटर लाइन है. एंड दीज आर द गजेट प्लेट्स, दीज आर द, यहाँ पे देखो लिखा है गजेट प्लेट्स. दीज आर द गजेट प्लेट्स. यहाँ पे गजेट प्लेट के पास एंगल्स कनेक्ट किए रहते हैं. ये जो इंक्लाइंड मेंबर्स है आर कनेक्टेड टू द लोअर टाई मेंबर बाय द गजेट प्लेट्स. दिस वन इज अ टाई मेंबर, लोअर टाई. एंड दीज आर योर राफ्टर, दीज आर द प्रिंसिपल राफ्टर. यहाँ पे लिखा है दिस वन इज द प्रिंसिपल राफ्टर. ओके,
नाउ प्रिंसिपल राफ्टर, दिस इज द लोअर टाई, और यहाँ पे जो मेंबर कनेक्टेड है दैट इज बाय यूजिंग अ गजेट प्लेट, यहाँ पे भी गजेट प्लेट दिखेगी। ओके, जो जहाँ जहाँ मेंबर्स कनेक्ट हो रहे दैट इज बाय यूजिंग अ गजेट प्लेट्स, दैट इज बाय यूजिंग अ गजेट प्लेट्स। ओके, नाउ you are also aware with the what is mean by cleat and what is mean by purlin, that we already discussed. ठीक है, so this one is the cleat and these are the purlins. okay, these are the purlins. purlins मैंने अभी अभी आपको बताया कि purlin क्या है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स है, ये पॉइंट पहले ट्रस का और दूसरे ट्रस का, ये पहली ट्रस ये दूसरी ट्रस, ये दो का जो सिमिलर पॉइंट कनेक्ट हो रहा हॉरिजॉन्टल मेंबर से, अगर वो आप एलिवेशन में देखोगे तो यू विल सी दिस एज पर्लिंग, यू विल सी दिस एज अ पर्लिंग। पर्लिंग के लिए आप चैनल सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वही जनरली कॉल्ड इट एज अ सी सेक्शन। ठीक है, या फिर एंगल सेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन, डिपेंडिंग ऑन द स्पैन, डिपेंडिंग ऑन लोडिंग, दैट इज़ द टोटल वी कॉल इट एज अ डिज़ाइन। एंड दिस वन इज़ अ, now how it is connected to a column, so these are the foundation bolts, this one is the base plate, and here a cleat angle is used, and this one is the gusset plate. Again this is a gusset plate. A connection is made by using a bolted connection or welded connection. okay, now this one is a bolted connections. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे साइड से दिखेगा कि दीज आर द, ये देखो ये टॉप का 1 में 1 नंबर है। ये देखो डिटेल्स एट 1, डिटेल्स एट 1 में अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर कट किया तो दिस वन इज क्रॉस सेक्शन इज एंगल सेक्शन, दिस इज अ एंगल सेक्शन, वी कॉल इट एज अ डबल एंगल सेक्शन, वी कॉल इट एज अ डबल एंगल सेक्शन। दिस इज अ डबल एंगल सेक्शन। ओके, हर जॉइंट का यहाँ पे डिटेल गिवन है। ओके, दीज आर द, यहाँ पे जो आपको राउंडेड दिख रहा, दीज आर द बोल्ट, दीज आर द, यहाँ पे लिखा ही है बोल्टेड कनेक्शंस, सो दीज आर द बोल्ट्स, दीज आर द बोल्ट्स। ओके ना, ठीक है, हर एक जॉइंट का यहाँ पे 4 नंबर का हमने अभी अभी ऊपर देखा, ये 4 नंबर, दिस वन इज अ 4 नंबर। ऊपर जो लिखा था यहाँ पे एक लिखा था एंगल क्लीट, सो दिस वन इज अ एंगल क्लीट, दिस वन इज अ एंगल क्लीट। okay, so these are the details of steel roof truss, these are the details of steel roof truss, and this one is a structural framing. now next one is the king post truss, दिया है 4 to 6 मीटर। रेस्ट कार्ड यहाँ पे एक स्लाइटली कैम्बर्ड प्रोवाइडेड है, दिस वन इज अ सीजर शेप है, सो इट इज़ अ सीजर ट्रस। किंग पोस्ट 6 to 9 अगर करना है, पहले कहाँ तक के था 4 से 6, तो यहाँ पे एडिशनल मेंबर लगाए, यहाँ पे एडिशनल मेंबर लगाए, द स्पैन इंक्रीजेज फ्रॉम 4 to 6 to 6 to 9। ओके, रेस्ट कार्ड ट्रस, सिंपल फिंग ट्रस 6 to 9 के लिए। अब देखो इसकी ज्योमेट्री देखो, किंग पोस्ट की कैसा है, ये वर्टिकल किंग पोस्ट है, दीज आर द स्टड्स। यहाँ पे फैन ट्रस में देखो कैसा किया हुआ है। ओके, एंड दिस वन इज द इंक्लाइन मेंबर्स, अगेन इट इज़ यूज फॉर 6 to 9। फैन फिंक अगर यूज़ किया तो देखो ये मेंबर वैसे ही आ गया आपका, दिस इज़ द अनदर मेंबर, दिस इज़ द वर्टिकल मेंबर। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया और यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, क्या वर्टिकल मेंबर, यहाँ पे आ गया वर्टिकल मेंबर। सो दिस इज़ यूज फॉर 9 to 12 मीटर। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पैन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेंबर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आपको सभी को ये ज्योमेट्री ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट सम ट्रसेस, नॉट ऑल, बट कुछ ना कुछ ट्रसेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि होवे ट्रस की ज्योमेट्री कैसी है, फैन फिंग ट्रस की ज्योमेट्री कैसी है, दैट वन शुड नो। दिस वन इज़ द कंपाउंड फिंग ट्रस, कंपाउंड होवे ट्रस। अब देखो स्पैन फिर से बढ़ गया 12 से 15 मीटर, 12 से 15 मीटर। अब स्पैन बोलने के बाद यू शुड नो व्हाट इज़ मीन बाय स्पैन, व्हाट इज़ मीन बाय स्पैन। सो कंपाउंड होवे ट्रस विथ रेस्ट कॉर्ड, कंपाउंड फैन फिंग ट्रस, कंपाउंड फैन फिंग, ये भी 12 से 15 के लिए, ये 12 से 15। हाँ, सिर्फ क्या किया है यहाँ पे कॉर्ड्स आर रेस्ट, सम कैम्बर इज प्रोवाइडेड। ओके, कैम्बर्ड फिंक और फ्रेंच ट्रस।
Now next one are the north light trusses, 9 से 12, ये sloping on one side, sloping on one side. Okay, north light or sawtooth or weaving shade truss, or weaving shade truss. After that modified north light truss and bowstring. अब span देखो bowstring के लिए कितना बढ़ गया, 20 मीटर to 30 मीटर, यानी 30 मीटर above 100 feet, nearly 100 feet. Okay, so bowstring truss can be used up to the span from 20 meter to 30 meter. So these are the different types of steel trusses. Okay, now steel trusses have the following advantages over the timber trusses. Over the timber trusses, the sections comprising of steel truss are readily available in the required dimensions, resulting in minimum wastage of material. यानी आपको अगर चैनल सेक्शन चाहिए, एंगल सेक्शन चाहिए, तो मोस्टली जो भी रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. नॉट नेसेसरी टू पुट द ऑर्डर एंड टिम्बर सेक्शंस जो भी लगता है उसकी ऑर्डर दो और तैयार करो. दिस इज़ नॉट द थिंग. जनरली जो आपको सेक्शंस लगता है दैट इज़ रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट. मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर अवेलेबल. सो देयर इज़ अ minimum wastage of material along with savings of time also. Okay, and other advantages are also there. Steel trusses are light in weight, can be fabricated in any shape depending upon structural and architectural requirements with ease. हाँ, bowstring भी अगर करना है तो up to 20 to 30 मीटर. हाँ, तो structural and architectural requirement के हिसाब से steel trusses can be constructed. Okay, so light in weight, can be fabricated in any shape. Steel trusses are stronger and more rigid in comparison to timber trusses. Steel trusses are stronger and more rigid in comparison to timber trusses. The members in steel trusses are equally strong in tension as well as compression. This depends on the design. Steel trusses can be used over any span, where the timber trusses are suitable up to a 15 meter span. 15 मीटर स्पैन में भी स्टील ट्रसेस के टिम्बर ट्रसेस के सेक्शंस हेवी आते. स्टील ट्रसेस आर फायर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ. वन ऑफ द ग्रेटर एडवांटेज, स्टील ट्रसेस आर टर्माइट प्रूफ. ओके, सो मेंटेनेंस उसका कम हो जाता है एज कम्पेयर विद द टिम्बर ट्रसेस. स्टील ट्रसेस हैव लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर विद द वुडन ट्रसेस, and with less maintenance also. Okay, so these are the advantages of steel trusses over the timber trusses. One should know these things. Okay, तो अभी हमने रूफिंग में वुडन ट्रसेस देखे. वुडन ट्रसेस में पहला कौन सा था आपका, सिंगल रूफ ट्रस, उसका बाद का था डबल रूफ ट्रस, और तीसरा था ट्रिपल मेंबर ट्रस. तो इसमें मोस्टली जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ वे डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द टिम्बर ट्रसेस, विद रिस्पेक्ट टू द टिम्बर ट्रसेस, टिम्बर रूफिंग्स, वुडन मटेरियल्स. ओके, और द नेक्स्ट जब आता है, यानी ये जो सब था दिस इज़ द स्लोपिंग रूफ्स. दीज आर द स्लोपिंग रूफ्स. द स्लोपिंग मे बी ऑन वन साइड, मे बी ऑन द बोथ साइड्स. स्टील ट्रसेस भी अभी हमने जो देखा नॉर्थ लाइट छोड़ के, तो और bowstring, तो दीज आर स्लोपिंग ऑन बोथ द साइड्स. ओके, स्लोपिंग ऑन बोथ द साइड एक्सेप्ट द नॉर्थ लाइट आपका स्लोपिंग ऑन वन साइड आता है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस इन स्टील. तो देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन द वुडन ट्रसेस एंड स्टील ट्रसेस. ओके, so this covers the first part of unit 3. Next part we come up with the roofing materials. यानी roofing material कौन सा यूज़ करना चाहिए आफ्टर लेइंग एक बार ट्रसेस का इरेक्शन हो गया. ट्रसेस का इरेक्शन होने के बाद which material should be laid, what are the options available for a roofing material? That will be our next discussion. So
आप ये ट्रसेस की ज्योमेट्री की प्रैक्टिस रखो, कुछ ना कुछ, यानी नॉट नेसेसरीली ऑल द ट्रसेस यू शुड नो, बट एटलीस्ट सम ट्रसेस यू शुड अवेयर विथ, ओके, जिसमें आपका किंग पोस्ट आ गया, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट आ गया वुडन में जाने के बाद, और इसमें स्टील में जब आएंगे तो वन शुड नो द सम ज्योमेट्रीज ऑफ नॉर्थ लाइट, देन Pratt truss and Hove truss, okay, Pratt truss, Hove truss, Fink truss, fan truss. One should know the geometries of these things, these trusses, along with the descriptions of these purlins, what is meant by purlin and other components of trusses. Okay, next lecture we will continue with the roofing materials. Thank you very much.